everyone, welcome to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma and in this video we'll be learning about React. So in the past videos we have already completed what exactly is HTML, CSS and JavaScript. We have completed we have created videos for all the topics and we have created separate basics topic of JavaScript also and advanced ones also. So once we have completed HTML, CSS and JavaScript, now it's time to let's start learning about what exactly is React. Okay, so in this video specifically we'll be talking about three things. First is what exactly is React.js. Okay, then we can talk about that who built React.js and who is basically supporting React.js. Okay, and why exactly do we need React.js. Okay, so we'll be talking about these three W's to understand कि हमारे लिए React क्यों important है to learn. Okay, so very first thing is that when you talk about कि what exactly is React.js, so you say कि it is a JavaScript library, okay, which is used to build UI interfaces. Okay, so what do you mean when you say that it is a JavaScript library? When you say that something is a JavaScript library, that means वो एक library है जिसका जो code written है that is written inside the JavaScript. जब आप उस library को use भी करोगे तभी भी आप उस लाइब्रेरी को जब यूज़ करोगे तो आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे दैट वुड बी जावास्क्रिप्ट. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी. ओके, वी ऑल नो कि लाइक देयर इज समथिंग विच इज नोन एज फ्रेमवर्क, देयर इज समथिंग विच इज नोन एज लाइब्रेरी, देन यू हैव मॉड्यूल्स, यू हैव फाइल्स, यू हैव फंक्शंस. तो जो सबसे बड़ा होता है दैट इज़ फ्रेमवर्क. और लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द छोटा वाले से. तो जब का सबसे छोटा एंटिटी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दैट इज़ योर फंक्शन और योर वेरिएबल्स. ठीक है, सिंगल एंटिटी. ओके, when you combine multiple functions it becomes a file. When you combine multiple files it becomes a module. When you combine multiple modules it becomes a library. When you combine multiple libraries or multiple functions, multiple modules like this, and then it becomes a framework. Okay, तो जब आपको कोई फ्रेमवर्क पढ़ना होता है डेफिनेटली उसका जो आर्किटेक्चर और वो सब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. दैट वुड बी अ डिफरेंट वन. ठीक है, वो डिफिकल्ट होगा कंपैरेटिव टू लाइब्रेरी बिकॉज लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर छोटा होता है. इट इज़ लाइट वेटेड क्योंकि वो लाइब्रेरी है, छोटी है तो वो लाइट वेटेड होती है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई रिएक्ट इज़ वेरी पॉपुलर कि एक लाइब्रेरी है नॉट अ फ्रेमवर्क, वेयर एज एंगुलर एक फ्रेमवर्क है. ठीक है, तो वो कंपैरेटिवली हैवी है for the website when it gets load on the browser. Okay, now next step is that it is a JavaScript library which is used to build UI interfaces. तो हमने यहाँ पे ये नहीं कहा है that React is something which is used to build websites. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे. It is, we are saying that it is used to build UI interfaces, which means we can build web applications also with this and we can build mobile applications also with this. Okay, when you say that you can build web application मतलब कि हम लोग यूज़ करेंगे react.js. ओके, व्हेन यू से कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो दैट मीन्स यू विल बी यूजिंग रिएक्ट नेटिव. ओके, सो ये बेसिकली रिएक्ट का ही पार्ट है. सो यू हैव रिएक्ट, देन यू हैव योर .js ओवर हियर, देन यू हैव नेटिव ओवर हियर लाइक दिस. ठीक है, तो ये सब रिएक्ट का ही पार्ट है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिएक्ट ओनली. ओके, तो हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग करेंटली फॉर दिस प्लेलिस्ट एंड फॉर द कमिंग वीडियोस हम लोग React.js पे फोकस करेंगे विच इज़ द वेब एप्लीकेशन पार्ट टू बिल्ड द वेबसाइट. ओके, ऑलराइट, so this is done that what exactly is React. Now the question comes that who exactly built React.js. Okay, so what happened is that like there was one person, his name was Jordan Wake. Okay, he was working in Facebook where he developed React.js and then finally after providing good support and by creating the complete community support for the React.js they launched React.js. Okay, so he is the person who actually developed React.js for the first time, and then definitely it is Facebook who is basically providing the complete support for the build and for the deployment, community support, everything for the React. Okay, so this is the back of the background of the React.js. Okay, now question comes is that why do we need React.js? That when we were working with plain HTML, CSS and JavaScript, then why exactly do we need React.js? Okay,
So now what happens is that, just remember, let's go to another page. Yes, so just remember कि जब हमारे को, जब when we were working, when we were learning HTML CSS JavaScript, तो हमारे को जब भी कोई भी यूज़र एक्शन पे वर्क करना होता था, तो हाउ इट यूज टू बी. ओके, सो लेट्स से कि हम लोग क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग कोई यूज़र एक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं. ओके, विच मीन्स समवन हैज़ क्लिक द बटन, और हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ द बटन क्लिक हम लोग को उनको कुछ डिस्प्ले करना है. ओके, सो इन दैट केस हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप था वो एक HTML फाइल क्रिएट करना था. ओके, हम लोगों ने एक HTML फाइल क्रिएट करी. सेकेंड स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे एक बटन एलिमेंट क्रिएट किया. ठीक है, हम लोगों ने एक बटन एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, क्योंकि आप HTML क्रिएट करो तो आपको टैग क्रिएट करना है. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज दैट फिर आपने क्या किया, आपने एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करी. Okay, now you need to link this file with the HTML, link with HTML. ठीक है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ. ओके, ये आपने लिंक किया. थर्ड स्टेप ये होता है आपका कि फिर आप जब आपने लिंक कर लिया, देन यू डिफाइन इवेंट लिसनर्स. तो फिर हम लोगों ने इवेंट लिसनर्स डिफाइन किए. हमने इवेंट लिसनर डिफाइन किए फॉर स्पेसिफिक दिस बटन. अगर आपको मल्टीपल बटन्स को हैंडल करना है तो आपको सबके लिए इवेंट लिसनर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट. तो आपने इवेंट लिसनर डिफाइन किया. ठीक है, फिर उसके बाद में आपने फंक्शन डिफाइन किया जो कि इस इवेंट लिसनर पे वर्क करेगा बेसिकली. ओके, देन फिफ्थ स्टेप इज दैट कि आप ये इस इवेंट लिसनर को रिमूव करते हो. इवेंट लिसनर को आप लोग रिमूव करते हो. तो जब आप ये सब चीज़ें करते हो, you do all these things, then you have two files also. One is separate HTML file, one is separate JavaScript file. ठीक है, तो जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो इट बिकम्स सुपर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, पर जब आप रिएक्ट की हेल्प से करते हो, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली विद रिएक्ट. ठीक है, जब आप कोई भी UI लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ दिस वनीला जावास्क्रिप्ट एंड HTML एंड CSS, इसको यूज़ ना करके आप जब भी किसी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी पर मूव करते हो, इट गिव्स यू वेरी प्रॉपर स्ट्रक्चर टू डू ऑल दीज थिंग्स. फिर आपको ये इवेंट लिसनर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनटिल अनलेस आप खुद से नहीं चाहते हो उसको ऐड करना. ठीक है, कि मतलब कोई सिनेरियो है जहाँ पर आप इवेंट लिसनर ही ऐड करना चाहते हो, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, अदरवाइज रिएक्ट प्रोवाइड्स यू समथिंग कि जहाँ पर आप एक कंपोनेंट क्रिएट करते हो, उसके अंदर ही आप HTML लिखते हो, उसके अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो. यू डोंट हैव टू डिफाइन एनी इवेंट लिसनर्स, और आप डायरेक्टली ऑन क्लिक करके फंक्शन यूज़ करते हो, एंड देन यू कैन डायरेक्टली जो भी आपको इवेंट पे आपको फंक्शन डिफाइन करना है, यू डिफाइन द फंक्शन. सो थिंग्स बिकम्स वेरी सिंपलर एंड ईजी टू वर्क विद. Okay, whenever you are working with any UI framework or library. Okay, so it is up to you now, but definitely when you're working with bigger projects, working with HTML CSS JavaScript is completely impossible. Okay, इस वजह से because code is not maintainable in that case. अगर आपको एक ऐसा कोड लिखना है जो कि मेंटेनेबल हो, you will be going ahead with the ones जो कि हम लोग लाइब्रेरीज या फिर फ्रेमवर्क्स यूज़ करके करेंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. अभी हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी सेटअप आवर फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट. ठीक है, तो पहले जो होता था, आपको रिएक्ट सेटअप करना अगर होता था तो यू यूज टू यूज CRA. ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली CRA? क्रिएट हाइफन react hyphen app. I don't know how many people are using this command right now or not. ठीक है, पर ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग React.js in 2016 और 2018. उस टाइम पे वी हैड ओनली द CRA ओनली. ठीक है, हम लोग सिर्फ CRA यूज़ करके ही रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते थे या फिर क्रिएट करते थे. दिस इज़ बेसिकली अ बॉयलर प्लेट. ठीक है, ये आप यूज़ करते थे टू क्रिएट योर रिएक्ट प्रोजेक्ट. ओके, बट एट दिस टाइम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता था, तब हमको रियलाइज़ नहीं होता कि ये इतना हैवी, पर अभी रियलाइज़ होता है बिकॉज वी डू हैव लाइटर वर्जन्स ऑफ बॉयलर प्लेट. ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो लेटेस्ट वन है विच इज़ योर वाइट. ओके, तो हम लोग वाइट यूज़ करके ही हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे. ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी क्रिएट आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट और हम उसको रन किस तरह से कर सकते हैं. ओके, सो यस, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट जैसे आपको अगर अपना फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो यू नीड Node.js. ओके, तो अगर आपको नोड इंस्टॉल करना है, यू कैन सिंपली गो टू दिस लिंक. आई विल प्रोवाइड दिस लिंक इनसाइड द कमेंट बॉक्स ऑल्सो बिलो. आपका जो भी सिस्टम है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शंस दे देगा. आपको बस उसको इंस्टॉल करना है
यू नीड टू देन गो टू योर डाउनलोड्स एंड देन वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा. ओके, फिर आपको यू जस्ट हैव टू गो टू कंटिन्यू अग्री एंड देन कंटिन्यू. अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इसलिए आई वोंट बी डूइंग इट वंस अगेन. ठीक है, पर जैसे आप इंस्टॉल करोगे यू विल एंटर योर यूज़र नेम पासवर्ड. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे कि इफ़ इट इज़ इंस्टॉल्ड प्रॉपरली और नॉट. सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, because to identify if node is installed in your system or not, best way is to do it with using terminal. ठीक है, so let's open a folder over here. Let's open folder and we'll just open desktop. ओके, हम लोग डेस्कटॉप ओपन करते हैं एंड इसके अंदर विल क्रिएट अ फोल्डर एंड विल जस्ट नेम इट React.js. ओके, यहाँ पे अगर इफ़ आई विल ओपन अ टर्मिनल and then if I will just simply say node -v, then it will give me the latest version of node. जो भी आपने वर्जन का नोड आपने इंस्टॉल किया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है यस इट इज़ 22 ओनली. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने भी 22 वर्जन को ही इंस्टॉल कर रखा है. वंस योर नोड इज़ इंस्टॉल्ड, आपके पास एक कोड एडिटर होना चाहिए जो कि हमारे पास है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर. एंड आफ्टर दैट हम लोग हमारा कमांड रन कर सकते हैं टू रन योर प्रोजेक्ट, टू क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. ओके, सो व्हाट इज़ दैट कमांड, वी विल बी डूइंग npm create white @latest. इसका मतलब ये कि हम लोग वाइट के जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट हम लोग हमारे प्रोजेक्ट का नेम ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर क्रिएटिंग माई React प्रोजेक्ट. डू नॉट ऐड एनी अंडरस्कोर और एस टाइप के कोई सिम्बल्स जो कि वैलिड नहीं होते हैं. सो ऑलवेज यूज़ हाइफन, दिस इज ऑलवेज परफेक्ट. ओके, फिर उसके बाद में हम लोग इसको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं कि जो आप React जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो बेसिकली React टेम्पलेट पे बेस्ड होना चाहिए. बिकॉज वाइट जो है वो आपके Vue.js के प्रोजेक्ट को भी क्रिएट करने में हेल्प करता है. तो ये सेम बॉयलरप्लेट यूज़ होती है आपके अदर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में भी. तो हम बस उसको ये बताते हैं कि आपको जो टेम्पलेट यूज़ करना है दैट वुड बी React, कि जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो React के बेस पे होना चाहिए. ओके, आफ्टर दिस वन विल जस्ट मूव टू cd माई React और फिर आप टैब प्रेस कर सकते हो, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. ओके, आपने यहाँ पे मूव कर लिया. ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो VS कोड ओपन कर रहे हो वो आप हमेशा करेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर पर ही ओपन करो. तो आप अपना VS कोड डायरेक्टली इसी पे ही ओपन कर लो इनसाइड योर माई React प्रोजेक्ट. ओके, ओपन दिस ओवर हियर, गो टू योर टर्मिनल वंस अगेन. सो इफ़ यू विल सी यहाँ पर इनसाइड दिस वन इट टोल्ड अस कि आपको सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाना है. देन यू नीड टू इंस्टॉल द पैकेजेस. जो भी आपके पास पैकेज होती है ये सब चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये पैकेजेस क्या होता है, ये इंस्टॉल हम क्यों कर रहे हैं. ठीक है, पर अभी के लिए लेट्स जस्ट डू वॉट एवर इज़ रिकमेंडेड. ओके, सो यस लेट्स गो बैक ओवर हियर. इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं. ओके, सो नाउ वी आर इनसाइड दिस वन. आई विल डू npm इंस्टॉल. अगर आपको npm इंस्टॉल पूरा नहीं लिखना है तो यू कैन सिंपली राइट डाउन npm i ऑल्सो. इन दैट केस ऑल्सो इट विल वर्क. जैसे आप npm इंस्टॉल लिखते हो इट बेसिकली एड्स दिस node_modules फोल्डर. दिस modules फोल्डर बेसिकली कंटेन्स एवरीथिंग दैट यू डू नॉट हैव टू डू इट मैनुअली. ठीक है, तो जैसे इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोगों को HTML को जावास्क्रिप्ट से लिंक करते वक्त जब हम मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे थे हमको कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ते विच इज़ टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल्स. ठीक है, ऐड करना पड़ रहा था सो दैट इट कैन टॉक विद इन द फाइल्स. ओके, ये सब चीज़ें हमको अब करने की ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी ये बॉयलरप्लेट ऐड करके आपको देता है. ओके, सो नाउ टू रन योर प्रोजेक्ट you have to do simply npm run dev. okay, जब आप इसको रन करोगे it is saying you can check your project on this specific port number, go back and then run it over here. तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है. दिस इज योर फर्स्ट React project that we have created which is using white boilerplate. Okay, so that's it for this video. Thank you so much for watching. We can have a recap of this video कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करी in this video, which is कि what exactly is React. So React is a JavaScript library which is used to build UI interfaces. React का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है पर हम लोग उसको ऐसे ब्रेक डाउन कर करके ही हम लोग उसको स्टडी करेंगे. ठीक है, सो UI इंटरफेसेस कम्स अंडर वेब होता है, नेटिव होता है, वेब होता है, मोबाइल होता है. सो React helps you to build web application also and mobile applications also. Okay, and then we understood how complex it is when you are building applications using vanilla JS, HTML and CSS.
ठीक है. So we'll be using these boilerplates, we'll be using proper libraries and framework when we are building a proper web application. Okay, so that's it for this video. Thank you so much for watching and have a good day.